guys, welcome back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And today's video is all about Sarojini Nagar haul, and this Sarojini Nagar haul is going to be one of the best Sarojini Nagar haul you've ever came across. I can bet on that. So if in case you don't follow me on Instagram, this is my Instagram page, Sapna Rai CH. I make and I post a lot of fashion related content on my Instagram. So if in case you like it, go ahead, give it a follow. And without any further ado, let's get into the video. The first thing I have bought, it needs to be these bags. So मैंने पहला जो बैग खरीदा, it was this burgundy shade. It was so good. And मुझे इसका ये tie up detail काफी ज्यादा अच्छा लगा. It costed me 1000 rupees या 900 कुछ उस शॉप से. And shop number यहाँ पे screen पे mention होगा, so stay tuned for it. And इसका quality, I would say, as per the pricing, it's really good and it looks very trendy. And I remember I have posted my whole look on Instagram. It was from Sarojini only, and everybody keep on asking, where is your bag from? Where is your bag from? So I got this bag and it has very good compartments. If you see, 2 compartments हैं इसमें and काफी अच्छा spacious bag है. So yeah, this was the first bag I bought. Another bag which I have bought, it needs to be this something like a, you know, leopard print. मुझे एक bag चाहिए था इस print में because it was so trendy and I was like कि मैं Zara पे देख रही हूँ, ले लूँ नहीं लूँ, because there it was costing like 5-6 thousand से नीचे एक bag नहीं था वहाँ पे जो मुझे पसंद आ रहा था. And I saw this and I was like, Sapna, this is a steal deal because it's such a big bag and it's so spacious with 2 zippers in it. And yeah, I bought these 2 bags. I think 1800 या 2000 rupees मैंने इन दोनों bags का pay किया, which I feel as per the quality, as per the size, if I go online, I am not going to get any bag and a trendy bag like this at this price range. So ये काफी अच्छा लगा. इसकी zipper quality and पूरी quality अगर आप देखो ना, overall quality if I talk about, it's really nice and it looks very sturdy and very smart. If you zip it and then you hold it like this also, it looks very smart. So अगर आप इसमें थोड़ा सा कम सामान रखेंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक आउटफिट में इसको कैरी किया है. And it looks very stylish, very, you know, very classy at the same time. So yeah, these 2 I bought from this shop number which is mentioned on the screen and I paid approx 1800 या 2000 rupees for both the bags. अब बात करते हैं next चीज. जो next चीज मैंने ली है वो shop number 198 से लिया है. So I've picked a lot of things from shop number 198. This is one of my favorite shops which you should always visit. If you are in hurry, you go there and you find a lot of stuff over there. So यहाँ से जैसे घुसते हैं 198 की जो पहली शॉप है उससे मैंने लिए हुडीज, जिसमें से एक हुडी तो मैंने पहनी. यू कैन सी इट्स ओवरसाइज कैप हुडी है एंड इट इज वेरी स्मार्ट हुडी है. ये काफी ज्यादा गर्म है. इसके साथ मैंने जॉगर्स भी लिए थे. तो 1 जॉगर आई बॉट इट फॉर माय बॉयफ्रेंड एंड माई सेल्फ, ग्रे कलर में. सी ही हैव स्टाइल्ड इट. एक्चुअली मैंने ही स्टाइल किया इसको, तो इस तरीके से उसने स्टाइल किया था. इट्स लुकिंग वेरी नाइस. एंड दूसरा जो इसके साथ मैंने जॉगर लिया था, ये इफ यू सी द, अगर आप इसका क्वालिटी देखो तो इट्स नॉट लेस देन लाइक बहुत अच्छा क्वालिटी है. द लेंथ, द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉगर, इट्स रियली नाइस एंड द फैब्रिक फील्स लाइक प्रीमियम. इसमें एक टैग लगा हुआ था जो कि आई थिंक हमने जब चेक किया था उस वेबसाइट पे, इट वाज फॉर $128 समथिंग फॉर दिस one, you know, 1 jogger and 1 hoodie. 1 hoodie was like 130 something like that. कुछ इसी तक का कुछ प्राइस था, which turned out to be like 8000 or maybe 9000. I don't remember exactly, like more than that also. But ये मैंने दोनों पेयर, like मैंने सोचा था I'll wear it together with some cap and you know fur वाली चीज से काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. प्लस विंटर्स में इस टाइप के जॉगर्स हुडी काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं. तो मैंने ये जॉगर का इसका सबका 400 पे किया था. एंड ओवरऑल आई थिंक हमने 4 लिए थे. आई थिंक आई बॉट 2 hoodies and 3 joggers. 2 hoodies, 3 joggers and I overall paid 2000 to भैया बार्गेन करके. तो इतना मैंने उनको पे किया था, which I think is a fair deal because the quality of these joggers are really nice and they feel very premium. They are very warm. So yeah. उसके बाद जो मैंने next चीज शॉप 198 से लिया था, it was this. ये स्वेटर है
एंड ये काफी ज्यादा एक ब्यूटीफुल कार्डिगन है। पहली बात, इट्स इन ग्रे टोन, और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इसकी ये डिटेल। अगर आप देखो यहाँ पे इस तरीके से बर्गंडी डिटेल है एंड देन इट्स अ वाइन। सो मैंने इसको पहना था अपने ग्रे जॉगर के साथ विद वाइड हाई नेक एंड कैप, एंड वो कुछ इस तरीके से लग रहा था, विच आई फील फॉर विंटर्स, वेरी कोजी इजी वाइब है। एंड आई बॉट दिस फॉर 200 रुपीज आफ्टर बार्गेनिंग, विच आई फील इज अ वेरी ग्रेट डील। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने वहां से ली है, एक शियर टॉप लिया था मैंने, एंड दिस इज यू नो, मैं जब भी सरोजनी जाती हूँ, इफ यू आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर, आपको पता होगा कि मैं हमेशा पैर में लेके चलती हूँ। लाइक अगर मैंने कोई एक चीज खरीदी तो मैं सोचूंगी ओके ये चीज मैं इसके साथ स्टाइल कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा पूरा एक लुक शॉप करती हूँ सरोजनी से, या फिर मेरे पास कुछ पहले से पड़ा होगा तो मैं सोचती हूँ। मैंने ये लिया बर्गंडी ऐसा शियर टॉप, एंड यू नो व्हाट, इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक इट्स फ्रॉम H&M। H&M का जो डिवाइडेड सेक्शन है उसमें से है ये, एंड ये पूरा एक शियर टॉप। आई वाज लाइक ब्रो इट्स अ वेरी गुड डील, बिकॉज 100 रुपीज या 80 रुपीज मैंने इसका पे किया था। शॉप 198 में दस टू शॉपकीपर्स लेफ्ट हैंड साइड पे जिनके पास यूजुअली ऐसे टॉप्स ही होते हैं, तो मेरे को था कि भाई ये तो मुझे लेना ही लेना है, बिकॉज इसका स्लीव भी आप देखो कितना लंबा है। आई स्टाइल इट विद माई वाइन पैंट्स, एंड ये काफी ज्यादा ट्रेंडी लग रहा था। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, आपको कि सपना यू आर ऑब्सेस्ड विद बर्गंडी कलर मे बी, बट लेट मी शो यू दिस। सो ये एक स्टॉल है जो मैंने पहना है। पहली बात, कई जगह पे ये स्टॉल काफी एक्सपेंसिव थे, मतलब लाइक पीपल वर सेलिंग इट फॉर 300 280, बट अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे, थोड़े थड़ियों पे देखोगे, तो आपको कम प्राइस रेंज में भी मिल जाएगा। मे बी 150 के जो थड़ियाज होती है ना स्टॉल वाले, उसमें भी आपको एक आध पीस ही मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये अलग अलग डेज पे मैंने लिया था। आई बॉट दिस ब्राउन वन वाला, तो ये भी काफी थिक है, आप देख सकते हो। एंड देन मैंने ये लिया था, लाइक दिस इज ऑल्सो लाइक अ वॉयलेट बर्गंडी, जो शेड अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैंने ये लिया था। एंड दिस कॉस्टेड मी, आई थिंक ये मुझे पड़ा था 200 या 180 कुछ इसी तक का पड़ा था। मैंने उस थड़ी पे से लिया था। अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, जो 280 या 300 के होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, बट दिस इज लाइक अ एवरेज साइज व्हिच आई फील इज अ गुड डील एज पर द प्राइस रेंज, एंड इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये मैंने एक नॉर्मल थड़ी से लिया था, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल किया था। अब जो ये लुक आप देख रहे हो मेरे साइड में, इसकी मैं बाकी चीजें भी दिखाऊंगी, बिकॉज इट्स ऑल्सो फ्रॉम सरोजनी, जस्ट ट्राउजर एंड शूज मेरे सरोजनी से नहीं है। सो नेक्स्ट आई गॉट दीज टू कैप्स। आई लव स्टाइलिंग कैप्स, एंड आई लव हाउ द होल कैप यू नो एसेंस फील ऑन मी। सो मेरे को काफी अच्छा लगता है कैप स्टाइल करना, सो आई गॉट दीज टू कैप्स। इसके बाद मैंने और कुछ स्टाइलिंग करने के लिए भी लिया था, एंड मैं दिखाती हूँ। मैंने ये दो ऐसे फर वाले ना ईयर, क्या बोलते हैं इसको, ईयर कफ बोलते हैं शायद, तो मैंने ये दो लिए थे, ये दो कलर में। एंड इसमें ना मुझे बहुत अच्छा फर जैकेट दिखा था, बहुत लॉन्ग, तो मैंने ना उसको देख के सोचा था, दूर से देखा था उसको, और ये पास में ऐसे ये वाली आपको बहुत सारे थड़ियों पे मिल जाएंगे। सो आई गॉट दीज, एंड ये वाला लास्ट ईयर मैं कहाँ गई थी, स्पीति गई थी, तो वहां छूट गया था, तो आई वाज लाइक आई हैव टू गेट दीज टू। सो मैंने ये दोनों लिए, मेरे को काफी अच्छे लगे। द कलर ओवरऑल, द ब्राउन शेड यूजुअली लुक्स वेरी गुड ऑन मी, सो आई थॉट आई विल हैव अ ब्राउन शेड एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड। एंड ये आई थिंक हमने लिए थे 200 के, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद आई बॉट वन हैज टू बी दिस ब्यूटिफुल फर जैकेट। अगर आप देखो इसमें पूरा फर है, एंड यहाँ पे ये स्लीवलेस है। आई विश काश इसमें स्लीव्स होते तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, एंड ये पूरा इस तरीके से ना ऐसे पूरा फरी है। इसको मैंने पहना था, जब मैंने इसको लिया था ना उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं इसको शियर अपना जो वाइन कलर का लिया उसके साथ स्टाइल करूंगी विद कफ एंड कैप, एंड मैंने पूरा लुक उसी टाइम अपने दिमाग में पूरा क्रिएट कर लिया था। एंड you know what, the overall look turned out really good. इसके बाद जो मैंने दूसरा लिया था फर, because people are so obsessed with fur, so am I feel। मैंने लास्ट ईयर भी एक फर वाला जैकेट लिया था, which I'm thinking if I'll go बर्फ वाली जगह पे then I'll wear it, let's see, hoping for the best। So I bought this fur वाला full jacket which is really nice, and it's a vest kind of thing, and ये मैंने दोनों लिए थे शॉप नंबर 97। जैसे आप 97 के पास एंटर होते हो, राइट हैंड साइड पे आपको एक अंकल सिर्फ फर के वेस्ट और यही सब सेल करते हुए दिखेंगे। इफ यू आर इन्वेस्टिंग मे बी 400 500, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट ऐसे पुल करके देखो कि फर निकल तो नहीं रहा है। अगर फर निकल रहा है तो आपके घर में भी गंद फैलाएगा, प्लस इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी फर। सो ये मैंने लिया था। इनके पास काफी सुंदर फर थे, ये बहुत ही सुंदर लगा था मेरे को। इट्स वेरी स्मार्ट एंड वेरी कोजी वाइब। आई विश इसमें मुझे फुल वो वाला मिला होता। अब जैसे मैं आपको एक कैप दिखाती हूँ, ये मैंने एक और थड़ी से ये कैप लिया था, ठीक है। आई बॉट दिस कैप, इट्स वेरी क्यूट गाइस, इट्स लुकिंग क्यूट। So ये सेम कैप I saw अभी Zara पे, and they are selling it for like
you know 5,000 नहीं, like 3-4,000. I got this for, और मैं बताना भूल गई थी कि जो मैंने वो फर वाले जैकेट्स लिए लाइक ग्रे एंड जो वेस्ट लिया है वो आई बॉट लाइक, मैंने बार्गेन करा था, बड़ा वाला आई थिंक आई बॉट इट फॉर 400 रुपीज और बाकी जो छोटे छोटे वाले थे वो 200 में या 250 रुपीज में मैंने लिए थे. सो यू हैव टू बार्गेन अ लॉट एंड इफ यू आर बाइंग ज्यादा पीसेस तो इजिली बार्गेन हो जाता है. ये मैंने 200 या 300 में लिया था ये वाला कैप, जिसमें ऐसे ऐसे ये भी है, ये आपको ब्लैक में भी मिल जाएगा वहां पे बहुत इजीली. नाउ लेट्स कम टू शॉप नंबर 198 अगेन. देयर इज वन थिंग व्हिच आई हैवंट स्टाइल येट एंड आई हैव गॉट इट फ्रॉम सरोजनी एंड आई डोंट नो, मे बी ये मेरे थ्रिफ्ट स्टोर पे जाएगा. इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड ऑन माय थ्रिफ्ट स्टोर, then Thrift with Sapna you can follow. We get lot of stuff from Sarojini and we sell at a very reasonable price over there, so you can go and check it out. Baki thrift store I have seen people selling the same pieces for like 1,000, 1,500, 1,600, but we keep a margin very low and then we sell it. It's just for my followers only. So yeah, so this is a sweater. This is all like ऐसे पूरा ना लाइक स्पार्कल भी है इसमें, तो ये काफी सुंदर है. मुझे लगा नेटेड बहुत प्यारा लग रहा है. इफ यू सी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरा ऐसे ना रेड सा है. इसमें मुझे काफी अच्छा, मुझे ना ये रोज स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा इसका. मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे स्टाइल करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज अ पीस व्हिच आई थॉट कि ये स्टाइलिंग इसका बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन कैसे होगा वो मुझे अभी तक फिगर आउट मैं नहीं कर पाई हूँ. बट आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल इन सम रेट्रो स्टाइल. सो ये एक और मैं आपको दिखाने वाली हूँ. दिस इज अ बिट ऑफ टेडी मटेरियल चीज में. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल क्यूट ऐसे वेस्ट है विच आई गॉट फॉर लाइक मे बी कितने का लिया था मैंने, 200 या 150 रुपीज का ही लिया था. एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शॉप नंबर 198. मुझे लगता है मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ शॉप 198 की. सो दिस इज अ वेस्ट. इफ यू सी दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लाइक अ वेस्ट एंड इसमें यहाँ पे पूरा इस तरीके से ना डिटेलिंग हो रखी है, गोल्डन बो का बन रखा है. मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको किसी तरीके से स्टाइल करूंगी बट अभी तक मैं सोच नहीं पाई हूँ. अगर मैं थोड़ा पास लाऊं तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से फुल, मतलब इसका जो मटेरियल है काफी ज्यादा सुंदर है. तो ये शायद ये भी मेरी बहन के पास जाएगा बिकॉज इट्स अ शॉर्ट वन. ओके, थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने मुझे लास्ट वीडियो में बोला था कि शॉप 115 अंडरग्राउंड में शिफ्ट हो गई है, वो बैग वाली शॉप. तो मैं आपकी बात बैग्स तो नहीं लाई वहां से, लेकिन आई गॉट फ्यू फ्रेम्स. उनके पास आजकल होम डेकोर के आइटम्स भी काफी होने लगे हैं. एज यू नो आई एम एस्टैब्लिशिंग माय स्टूडियो, जो पूरा एस्टैब्लिश होने के बाद मैं पक्का आपको पूरा एक टूर दूंगी. तो अगर आप देखो तो मैंने पहला फ्रेम ये लिया है एंड ये काफी अच्छा स्टेडी फ्रेम है. आई थिंक वी गॉट इट लाइक फॉर 100 या 150 ईच का था ये. एंड यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रग डिटेल है. अब नाउ इफ यू कैन सी दैट ये मेरे यू नो हॉल के इंटीरियर के साथ काफी अच्छा जा रहा है जो मैं एस्टेब्लिश कर रही हूँ. सो दिस इज अ वेरी वाइट एंड बेज टोन में. सो दिस इज वेरी वेरी नाइस. अनदर फ्रेम व्हिच आई गॉट, इट हैज टू बी this. I don't have a dog right now, but I think I will have one. And even Ashish ke ghar pe bhi they have got a new dog named Leo. So this is you know something good was coming. That's why I bought this. And I bought मतलब कुछ दिन आने से पहले मैंने लिया, तो which is a good sign. So I got this one. This is all embroidery. अगर आप देखो ध्यान से तो पूरा इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुआ है. और उसके बाद जो दूसरा फ्रेम है इसमें मैं अपनी फोटो लगाऊंगी और एक तरफ आशीष की और एक दूसरे को गुस्से में देखते हुए, कुछ ऐसा मैंने सोचा है. बट दिस इज ऑल, इफ यू नोटिस दैट ये पूरे जो मैंने तीनों फ्रेम्स लिए हैं वो अपनी हॉल के इंटीरियर को देखते हुए लिया बिकॉज आई एम थिंकिंग टू स्टैब्लिश अपने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ तो उस पर अच्छा लगेगा. तो कुछ ऐसा मैंने सोचा है. आई थिंक आई पेड हिम समथिंग 1,500 और 1,100 रुपीज. एंड मैंने 2 वो भी लिए थे जिसमें ज्वेलरी स्टोरेज होती है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ. सो ये मैंने ज्वेलरी स्टोरेज वाली चीज ली थी कि अगर आप देखो तो इसमें ऐसे ना मैं ज्वेलरी स्टोर करके रख सकती हूँ. नाउ द पॉइंट इज व्हाई आई बॉट दिस बिकॉज मैं काफी ज्यादा वीडियोस बनाती हूँ. सो यू नो सम डेज इफ आई एम शूटिंग एट होम आई वांट टू शो माय ज्वेलरी इन एस्थेटिक मैनर, तो मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ, स्पेशली ज्वेलरी हैविंग गोल्ड डिटेल. तो ये इस तरीके से ओपन होता है और इसका जो लुक है, जो फील है, वो काफी ज्यादा अच्छा है. वेरी रिच फील इट इज. काफी लोग इसमें मेकअप भी रखते हैं बट मैंने ये शूट पर्पस के लिए लिया है. एंड दूसरी जो मैंने चीज ली थी वो है ये सिल्वर वाली, लाइक इट्स अ सिल्वर फॉइल ज्वेलरी कीप, या क्या बोलते हैं उसको, ब्राइड्स क्या यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है. बट इफ यू नोटिस दैट दिस इज अ मेकअप वैनिटी काइंड ऑफ थिंग, या सिंदार, क्या सिंदार दाना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं है. बट ये पूरा ऐसे ओपन अप हो जाता है लाइक दिस. यू ओपन इट लाइक दिस. सो लुक एट दिस.
नाइस राइट। तो मुझे लगा कि जब मैं कुछ सिल्वर ज्वेलरी कुछ एस्थेटिक बनाना चाहूंगी तो उसके साथ ये काफी ज्यादा सुंदर और काफी अच्छे से ब्लेंडेबल होगा। तो इसमें ये बैंगल रखने वाला है जिसको मैंने अभी इस तरीके से निकाला है। तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे इसका एक लॉक है विच आई फील इज अ गुड प्रॉप। इस तरह के प्रॉप्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने ओवरऑल इन सब चीजों के 3 फ्रेम्स और 2 इसके कुछ उनको 1000 या 1100 पे किया था, विच आई थिंक इज अ गुड प्राइस रेंज what I paid. Next thing I want to show you, ये मैंने ग्राफिटी लेन से लिया था and you guys seems to love this in my video. ये वाली जो मैंने क्रिसमस वाला वीडियो बनाया था. So this is what we got. It's a beautiful Christmas sweater which I think I will never ever sell it on my thrift store because it's so cute and this is a very unique piece. अगर आप देखो पूरा इस तरीके से ना, ये पूरे यहाँ पे ना अलग अलग पूरी एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से हो रखी है और ये सब उठी हुई सी एम्ब्रॉयडरी, इतना क्यूट लग रहा है एंड I wore it with my joggers and it looked really good. So ये इस टाइप से मैंने लिया था and I bought this for 150 rupees which is a good deal. उसके बाद मैंने 30 से एक स्कर्ट ली थी, व्हाइट स्कर्ट, कुछ सोच के तो ली नहीं थी बट ये मुझे काफी क्यूट लगी। मुझे लगा समर्स में आई कैन या फिर विंटर्स में मैं इसको लेमन मैंने सोचा था कि आई गेट वन स्वेटर मेड एंड फिर मैं उस पर लेमन का क्रोशे करा लूं, लेकिन वो जिंदगी में होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। अगर अगले साल तक हुआ तो अगले साल तक पहनूंगी। बट आई बॉट दिस फॉर 200 rupees एंड आई फील इट्स अ रियली ब्यूटीफुल वेरी समरी व्हाइट स्कर्ट। आई सपना लव्स व्हाइट, तो मैं लास्ट टाइम भी कुछ व्हाइट कॉर्ड सेट लाई थी। इसके बाद मैं आपको 198 से मैंने 2 ड्रेसेस ली थी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई बॉट दिस ब्राउन ड्रेस एंड एक ड्रेस जो मैंने अपनी बहन के लिए ली थी, तो आई विल अटैच अ पिक्चर हियर। तो वो फुल फ्लोर लेंथ ड्रेस एंड इट्स ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस। So I bought this dress. It's a beautiful dress. It's very beautiful. इसका color, everything is very beautiful and now it's going to be sell on my thrift, but it's beautiful. The sleeves अगर आप देखो तो काफी सुंदर sleeves है and I think I paid like 300 या 400 for this dress and yeah it's beautiful piece and काफी stunning piece है ये। अगर आप इसका neckline भी देखो काफी ज्यादा सुंदर है। इसके बाद next and the last thing I want to show you, it has to be the boots. तो मैं आपको boots दिखाने वाली हूँ। I got the boots and I got these boots in Sarojini. I got the white cowboy shoes in Sarojini. I paid like 3K for these boots, but the thing is कि the shopkeeper was quite adamant and ये मैंने अपनी जो एक सरोजनी वीडियो दिखाया था उसमें भी मैंने ये पहने थे and it was really in my wish list and मेरे पास black and white दोनों cowboy boots हैं। मुझे एक boot और लेना है which is like a plain cowboy boot, but the print one adds so much glamour to your outfit and मैंने जब उसको स्टाइल किया था it looks fabulous, ठीक है। एंड 3000 मैंने इस बूट के पे किए हैं तो मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन this is what I have paid for. So that's all for today video guys. If in case you like it, follow me on Instagram also because वहाँ पे मैं आपको काफी सारे fashion tips देती हूँ. Till then sit back, relax and I love you guys. Bye bye.